Okay, so first we are going to somebody's there. First, we are going to complete certain parts. One part actually, one small part, and some examples from maths chapter circles. So this is the final part, last part, जिसका discussion इतना अच्छे से हमारा हुआ नहीं है videos में. So I want to make sure that that is covered. ठीक है. सो आर्क एंड कॉर्ड प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हमने बात तो की थी, बट फिर भी एक रिवीजन में दे देता हूं तुम लोगों को. सो आर्क एंड कॉर्ड प्रॉपर्टीज में, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ सर्कल्स चैप्टर. इक्वल आर्क्स कट इक्वल कॉर्ड्स एंड इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क्स. इसका क्या मतलब है? सपोज एक सर्कल है, तुम्हें दिख रहा है सर्कल विथ सेंटर ओ. इसमें दो आर्क्स है, ए पी बी and CQD. Can you see those two arcs? If these Yes, two sir. arcs are of equal length, then they will cut equal chords. That means अगर APB और CQD की लेंथ सेम है तो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD की लेंथ भी इक्वल होगी. और उसका उल्टा भी ट्रू है. इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क्स मीन्स कॉर्ड AB और CD अगर इक्वल है तो आर्क APB और आर्क CQD, दैट इज द आर्क कट बाय इक्वल कॉर्ड्स, विल आल्सो बी इक्वल. ठीक है. सो इसको याद रखना, इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क्स एंड इक्वल आर्क्स कट इक्वल कॉर्ड्स. एक ये चीज मुझे बतानी थी. सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, इफ arcs of two equal or congruent circles are equal, they cut equal chords. If arcs of two equal or congruent circles are equal, they cut equal chords. मतलब अगर दो अलग अलग सर्कल भी है और उसमें दो आर्क्स इक्वल है, APB और CQD, तो मतलब कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इक्वल होंगे. बट इसमें जो दोनों सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब क्या है? देयर रेडियाई मस्ट बी सेम, उनका रेडियस सेम होना चाहिए. सो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में इक्वल आर्क्स कट इक्वल कॉर्ड्स एंड इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क्स. मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये सिंगल सर्कल और दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दोनों पे एप्लीकेबल प्रॉपर्टी है. दैट्स वन थिंग. देन देयर इज वन थियरम, if two arcs of the same circle subtend equal angles at the center, then they are equal. यहाँ पे दो आर्क दिखाइए एक ही सर्कल में, APB और CQD. APB and CQD. Can you see these two arcs? It is given that these two arcs subtend equal angles at the center. मतलब angle AOB and COD, these two angles are equal. Then these arcs will also be equal. तो इसमें कंस्ट्रक्शन किया है. Just a moment. इसमें कंस्ट्रक्शन किया है. We have joined AB and CD. If you see, there is another figure. Same question, another figure. They have joined AB and CD. So now do you see two triangles, AOB and COD? In these two triangles, what is equal? AO is equal to CO, BO is equal to DO. Why? Radii of the same circle. Same circle की radius equal होती है. And angle AOB is equal to angle COD.
AOB और COD equal है. Why? It is given that these two arcs subtend equal angles at the center. मैंने तुम्हें पहले भी पूछा था, what do you mean by subtend? Subtend का मतलब क्या होता है? Exactly, make. Subtend का मतलब होता है make. यहाँ पे बोला है these two arcs make equal angles at the center. मतलब ये दोनों एंगल AOB और COD इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS टेस्ट, एंड बाय CPCTC वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू CD. If AB is equal to CD, then we can say that arc APB is equal to arc CQD. Arc APB और CQD equal है, hence equal chords of a circle cut equal arcs. ये तो हमने यूज किया इसमें प्रॉपर्टी, और हमने ये भी प्रूव किया कि if two arcs of the same circle subtend same angles at the center, then the arcs are equal. ये सेम प्रूफ हम लोग दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. इफ इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स two arcs subtend equal angle at the center, then the arcs are equal. एक मिनट, there was somebody I think. Anyways, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, if angle AOB is equal to angle COD, then arc APB will be equal to arc CQD. और एक थियरम है, if two arcs of a circle are equal, they subtend equal angles at the center. ये पहले वाली थियरम का कन्वर्स है, मतलब बोला है कि ये दोनों आर्क इक्वल है. अगर आर्क इक्वल है तो तुम क्या बोल सकते हो? पहले ही तुम क्या बोलोगे? If arcs are equal, what you can say? Chords are equal. Why? What is the reason why the chords are equal? Very good. Equal arcs cut equal chords. अच्छा, AO will be equal to CO and OB will be equal to OD. Why? Radii of the same circle. So these two triangles are congruent by which test? SSS. So you can say that angle AOB is equal to angle COD. That means if two arcs are equal, they subtend equal angles at the center. ठीक है? अच्छा, अभी इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इस पार्ट में. इस क्वेश्चन ऐसे है कि अगर दो आर्क इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है. ठीक है, अगर if let me draw one more figure and ask you, okay, you have been given a circle. ठीक है, इस सर्कल में you have two arcs, one is AB and another arc is CD, and this is the center of the circle. ठीक है, so what is angle AOB? Angle subtended by arc AB at the center, है ना? AOB angle subtended by arc AB at the center. What is angle COD? Angle subtended by arc CD at the center. And if I tell you that AB is to CD is equal to 1:2, AB और CD का रेशियो 1:2 है. ठीक है, so can you tell me what is the ratio of angle AOB is to angle COD? कितना होगा? मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, AB और CD के लेंथ का रेशियो 1:2 है. CD AB से डबल है. सो AOB एंगल और COD एंगल के बीच का रेशियो क्या होगा? 1:2. क्योंकि अगर इक्वल आर्क subtend equal angles at the center, then the angle subtended at the center and the length of the arc are proportional to each other. So if I
have been if I have given you the ratio, and if I have given you this angle, let's say this angle is 30 degree, can you find angle COD? 60 डिग्री। क्या किया हमने? हमने सिर्फ वो रेशियो को अप्लाई कर दिया। सो इफ वी नो द रेशियोज बिटवीन टू आर्क्स of one circle or of congruent circles, we can find the angle subtended by those arcs, respective arcs, at the center। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर पूरे पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है बेस्ड, इस लास्ट वाले में। और एक चीज है इसमें, ये रेशियो वाला जो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मैंने तुम्हें सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन is inscribed in a circle, do you know first what is regular polygon? Sorry, 5 sided। क्यों भाई 6 क्यों नहीं? What is a regular polygon? मेरा क्वेश्चन ये है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? Polygon is a closed shape bounded by straight lines। क्या होता है पॉलीगॉन? क्लोज्ड शेप बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस। सबसे कम नंबर वाली साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा है? वेरी गुड। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगॉन? Sir, all sides have equal measures. ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये जब मैंने एंगल लिखा है तो ये इंटीरियर एंगल्स। तो मुझे एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बताओ जिसमें 3 साइड्स है और वो रेगुलर है। रेगुलर, रेगुलर, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल। एग्जैक्टली, 3 sided रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। 4 sided रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है? स्क्वायर, वेरी गुड। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। 5 sided रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पेंटागन कौन सा? उसके बाद रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन एंड सो ऑन। दीज आर पॉलीगॉन्स। अब यहाँ पे पॉलीगॉन का क्वेश्चन कहाँ से आया? एक प्रॉपर्टी है, इसलिए हम पॉलीगॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी ये है कि इफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? अ पॉलीगॉन बीइंग इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब्ड। सरकमस्क्राइब्ड क्या होता है पता? अगर इंस्क्राइब्ड मेड होता है तो सरकमस्क्राइब्ड क्या होता है? एग्जैक्टली, इंस्क्राइब मतलब it is constructed within the circle such that all the 3 vertices of that polygon, 3 नहीं, all the vertices of the polygon lie on the circumference। मतलब ये सर्कल की बाउंड्री पे सारे वर्टाइसेस होंगे। तो अगर इस पे मुझे हेक्सागन ड्रॉ करना है, ठीक है, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये इधर जाएगा, 1 2 3 4, ये तो पेंटागन हो गया, पेंटागन है ना। ये साइड सारी इक्वल है। ऐसे ही हेक्सागन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट हेक्सागन? पता है? आएगा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग सीखेंगे। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ रफ में, ठीक है।
ये क्या है? रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अभी इंस्क्राइब्ड का मतलब समझा? वैसे ही तुम स्क्वायर इंस्क्राइब कर सकते हो सर्कल के अंदर, कर सकते हैं। ट्रायंगल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। सो इंस्क्राइब्ड का मतलब भूलना मत। अच्छा, सिर्फ पॉलीगॉन को इंस्क्राइब नहीं कर सकते, सर्कल को भी पॉलीगॉन के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं। तब हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल। हम बोल रहे हैं इंस्क्राइब्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है। अभी इसका क्या प्रॉपर्टी है फिर से? सी आई टू teach you this property, I have to first explain you what is polygon, despite you guys being in 9th class. polygon क्या होता है? अब मैंने तुम्हें समझाया inscribed क्या होता है। प्रॉपर्टी तो समझा ही नहीं रहा हूं, तो प्रॉपर्टी पे आता है। इफ एन एन साइडेड मतलब एन कितना भी हो सकता है। मिनिमम कितना होगा? एन 3, मिनिमम 3 होगा, बाकी कितना भी हो सकता है मैक्सिमम। is inscribed in a circle, then the angle subtended by each side of this polygon at the center is 360 by n. इसका मतलब है ये रेगुलर पॉलीगॉन सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? तो ये सेंटर है, ये पॉलीगॉन की साइड है, ये सेंटर पे एक एंगल बना रही है। डू यू सी दैट? तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 360 बाय, इसमें कितनी साइड्स है? 5। तो ये कितना होगा? 360 बाय 5। 360 बाय 5 कितना होता है? 72। तो वो एंगल 72 ही होगा। यहाँ पे अगर सेंटर है और ये बन रहा है एंगल यहाँ पे, हाँ, तो ये होगा 360 बाय 6, दैट इज 60 डिग्री। प्रॉपर्टी है एंगल subtended by each side of a n-sided regular polygon at the center is equal to 360 by n। ठीक है, ये याद रखना। ऐसा क्यों होता है 360 by n? क्यों होता है? हैव यू एवर थॉट? हाँ, तुम सही बोल रहे हो कि जो सर्कल का सेंटर होता है, सेंट्रल एंगल होता है ना सेंटर पे, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा कितना होता है? अब वो 360 n पार्ट्स में डिवाइड होगा। कैसे n पार्ट में डिवाइड होगा? क्योंकि हमने अंदर पॉलीगॉन बनाया है और वो सारे पॉलीगॉन की सारी साइड्स इक्वल है। एंड वी जस्ट फाउंड आउट दैट इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क। सो ये साइड्स क्या है? कॉर्ड्स है। तो ये आर्क भी तो इक्वल होगी। तो ये सर्कल कितनी आर्क में डिवाइड हो गया? 6 आर्क्स में। और हमने ये भी पढ़ा था अभी प्रॉपर्टी में कि इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो अगर हर एक आर्क इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है और टोटल 6 आर्क है और टोटल एंगल 360 है, तो हर एक आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगी? 360 बाई 6, दिस इज 60 डिग्री। लॉजिक समझ में आया इसके पीछे? मतलब ये प्रॉपर्टी के पीछे वही थियरम है जो हमने अभी पढ़ी है। पहली थियरम इसमें यूज जो हमने अप्लाई किया, दैट इज इक्वल आर्क्स कट इक्वल, सॉरी, इक्वल कॉर्ड्स कट इक्वल आर्क्स। एंड दूसरी थियरम जो हमने अप्लाई की, दैट इज इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। राइट? इससे हमने ये प्रूव किया। देन इट इज नॉट ट्रू, देन दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अप्लाइड। फिर ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते इफ द साइड्स आर नॉट ट्रू, नॉट इक्वल। एक ही क्वेश्चन है सॉल्व्ड एग्जाम्पल में। क्यों है ऐसा? बिकॉज ये पूरा एक्सरसाइज छोटा सा एक्सरसाइज है, ये इसी प्रॉपर्टी पे है। कौन सी? एक तो वो रेशियो वाली बताई मैंने और रेगुलर पॉलीगॉन वाली। देखो क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज अ साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागॉन। AB is a side of regular octagon. What is octagon? 8-sided regular polygon. ठीक है। एंड AC is a side of regular hexagon. ठीक है। फाइंड एंगल AOB। ये तो सीधा सीधा हम लोग पता लगा सकते हैं। व्हाट विल बी एंगल AOB? 360 divided by 8. Why 8? Because it's the side of regular octagon.
and we just found the formula for finding the angle subtended by n-sided regular polygon at the center. So 360 by 8 कितना होता है? सॉरी 45, नीचे देख लिया सबने. What about angle AOC? 360 by 6, which is 60. Makes sense? BOC. Can anybody tell? एक मिनट. No prompting. I will ask आराध्य. BOC. अच्छा एक मिनट, ये BOC ये वाला बोल रहे हैं या फिर ये वाला बोल रहे हैं? आराध्य कौन सा BOC बोल रहे हैं? ये नीचे वाला BOC या ऊपर वाला BOC? एक मिनट. आराध्य कौन है? हाँ, ऊपर वाला. अच्छा, नीचे वाला क्यों नहीं? नीचे वाला क्यों नहीं? वरद, ऊपर वाला है नीचे वाला? क्यों नीचे वाला क्यों नहीं? अच्छा, B से लेके C तक BOA कैसे होगा? ये OB है, ये OC है, तो नीचे वाला एंगल भी तो BOC है, ऊपर वाला एंगल भी BOC. कौन सा BOC ढूंढना है अपने को? ऊपर वाला है नीचे वाला? हाँ, क्यों? ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला, नीचे वाला नहीं तो ऊपर वाला. पे क्या गेम खेले क्या मेरे साथ? साला मैं उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ के परेशान करूंगा तुमको, और एग्जाम में वही होता है तुम्हारे साथ, और तुम लोग वहां पे हथियार डाल के आ जाते हो वापस. क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं लगा पाते. लगाओ दिमाग, सोचो. मेरे को वैलिड रीजन चाहिए. बता, ऊपर वाला एंगल BOC या नीचे वाला एंगल BOC? ये कौन सा पूछ रहे हैं? नीचे वाला क्यों भाई? क्यों नीचे वाला? निकाला नहीं है ना सर. क्यों निकाल सकते हैं ना अभी तो. अच्छा, यहाँ पे नहीं निकाला ये बोल रहे हो तुम? उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, रीजन बताओ. तुम्हें एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो तुम कौन सा एंगल ढूंढोगे? ऊपर वाला एंगल BOC या नीचे वाला एंगल BOC? क्योंकि दोनों BOC है. हाँ, नहीं, बट AOB और AOC निकालने के बाद मैं ऊपर वाला BOC भी ढूंढ सकता हूँ, दिखा सकता हूँ तुमको ढूंढ के. तो कौन सा पूछा है? सर हमको नीचे वाला एंगल BOC निकालना है. क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर ऑक्टागन. उसका इससे कोई लेना देना नहीं. उन्होंने सिर्फ एंगल BOC पूछा है, ठीक है? उसके अंदर के एंगल्स निकालने हैं. कुछ भी ऐसा बोला ही नहीं है कहीं पे. BOC अंदर वाला निकालना है बोला है क्या? किधर इधर लिखा हुआ है? कुछ भी ऐसा कोई रीजन नहीं. आई एम सॉरी फॉर दैट. मतलब ये 5 बच्चों ने तो गिव अप कर दिया ऑलरेडी. ऑनलाइन एक ही सहारा है मेरा अभी, ऑनलाइन के बच्चे. बोलो बेटा, ऊपर वाला एंगल BOC या नीचे वाला BOC, कौन सा ढूंढना है? सर नीचे वाला. क्यों भाई? क्यों यश? सर हाँ, क्योंकि हमने AOC निकाला. नहीं, दैट्स नॉट द रीजन. ये यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है किसी ने. दैट्स नॉट द रीजन. आई हैव टू स्टॉप यू. समबडी एल्स प्लीज. हाँ बोलो. भाई जा रहा है भाई. क्या पका रहा है भाई? यही बोलने का मन करता है ये सुन के. तुम्हारे जो लॉजिक है ना, तुम्हारे जो रीजन है, सुनो. ये जो एंगल है ना, ये वाला ऊपर वाला एंगल BOC, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल BOC. इडियट्स, रिफ्लेक्स बोला है क्या यहाँ पे? रिफ्लेक्स नहीं बोला है ना. ऊपर वाला रिफ्लेक्स है. रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? उस तरफ ना, और बेइज्जती करवा लो. हाँ, बाहर वाला. अच्छा, एक्सटीरियर एंगल को रिफ्लेक्स बोलता है. इडियट. हाँ हाँ, 180 से बड़े एंगल को रिफ्लेक्स बोलते हैं. वेनेवर यू
say the name or write the name of an angle which is greater than 180, you will use the word reflex. If it is not used, that means you want an angle which is less than 180. And out of the upper and bottom angle, which BOC is less than 180? Of course, the down one. रिफ्लेक्स नहीं बोला इसलिए नीचे वाला निकालेंगे, ये इसका करेक्ट रीजन है. तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, अगर रिफ्लेक्स बोला है तो ऊपर वाला निकालना, नहीं बोला है तो नीचे वाला, दोनों को ऐड करके. ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज है ये, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग. चलो, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे अच्छा लग रहा है. ऑनलाइन कौन मुझे हेल्प करेगा? ऑनलाइन कौन हेल्प करेगा? कोई सामने नहीं आ रहा. कौन हेल्प करेगा पूछा तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है. Oh, Chris Shetty is still there. Congratulations, everyone. But who has left then? Ah, that girl has left. क्या नाम है उसका? Amarin. नहीं नहीं, Amarin तो है. Amarin has left. Achal is there. Tanisha is there. Jia. चलो. Achal, you're there? Achal, you're there. Can you answer me? Can you hear me? ये लाइव क्लास में आएंगे ना तो इनकी ऐसी रैगिंग करूंगा ना, मैं ऐसी रैगिंग करूंगा ना कि ये जो ना सारा बदला लेने वाला हूँ मेरे अंदर ना. अब वो नो, आई कैन नॉट हियर यू डूड, आई कैन नॉट. माइक ऑफ है तू. हाँ, नहीं उसका, आंचल का. मेरा तो नहीं है, मेरा तो रिकॉर्ड भी हो रहा है. और सुन ले दुनिया वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को. आई कैन नॉट हियर यू आंचल, प्लीज लॉग इन अगेन, रीजॉइन. Sir, can I? Yes. Aryan Agrawal, I want you. Yes, sir. Great. Aryan, please help me with this question. Fourth Yes, one. sir. Fourth one. Yeah, sir. So, here it is written that AB arc AB and BC are of equal length. So, Correct. and angle AOB is equal to 48 degrees. So, angle BOC will also be 48 degrees. What is the reason, beta? Because, sir, we will first prove that No need to AOB, prove. Just give the reason. Yeah, because these OA and OC are of the same, are of the radius of the same circle, and No. Wait, Aryan. See, simply you have to write angle AOB is equal to angle BOC because equal arcs subtend equal angles at the center. क्या लिखना है? Equal arcs subtend equal angles at the center. तो अगर ये AOB 48 है तो BOC भी 48 होगा. Equal arcs subtend equal angles at the center. ठीक है. जिया काला. जिया Yes, काला. sir. Yes. Angle OBC. एंगल OBC ये तो मिल गया 48. एंगल OBC कैसे ढूंढेंगे जिया काला? The sum of all triangles of all angles of a triangle is 180. Okay, so this is 48. Then so angle BOC plus OBC plus OCB is correct. equal to 180. Correct. Can you all see ना? हाँ. Yes. फिर So, to angle OBC plus 48
Yeah, is equal to we can make it easy by saying that OB is equal to OC, radii of the same circle. So angle OBC is equal to angle OCB is equal to x. दोनों को x ले लेंगे. Why? Angles opposite to equal sides are equal. So x plus 48 is 180, and we can find x, which will be OBC. So how much will it be? Can you calculate and tell me, Jia Kala? yes sir. आराध्य Sir 66. कर रहे हो कुछ? सी ऐसे पैसिव बैठना ना क्लास में बहुत इजी है, और मेरे सामने, मेरे जैसे मगरमच्छ के सामने तो तुम पकड़े जाओगे भाई, क्योंकि मेरी आंखें ना हर जगह होती है, कौन क्या कर रहा है, किसना पेन पेन का मूवमेंट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आंखें किधर है, ध्यान किधर है. मैं ना बच्चे के अंदर झांक लेता हूँ, अंदर, बिल्कुल ऐसे अंदर, आंखों से अंदर कि क्या चल रहा है अंदर. यू कैन नॉट एस्केप डूड. गलत जगह पे आ गए हो. Sir 66. थैंक यू जी अकाला. 66 it is. Confirm ना 66. Okay, cool. Sir, can I do the third one? Wait बेटा wait. There are other people. हम उनको चांस देंगे थोड़े. सार्विक, are you there my friend सार्विक? यस सर. ओ क्या बात है यार, तेरा आवाज सुन के मजा आ गया मेरे को. और ये जो यस सर बोला ना तूने, अब तो मजा आएगा. AOC, AOC, सार्विक, AOC. Sir, we have to do angle AOB plus BOC equals to angle AOC. Yes, how much is it? So it's 96. 96. I like it. I like your attitude. Angle OAC. OAC. Oh, now this is interesting. GR Alf, are you there? Yes, sir. Angle OAC, GR Alf. For that, I think I need to draw a bigger figure, because bigger figure. Wait. सो ऐसा कुछ है यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा है ना. सो O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे C है. हमें OAC ढूंढना है. दैट इज फ्रॉम हियर. देख क्या गंदा किया मैंने. अंडू. Fair. OAC, Gia Ralph. Yes, sir. Sir, 180 degree. पहले तो let me give me some like what should I write here? Should I write anything here? Anything? Any angle should I mention? No, sir. आपने वहाँ उधर बनाया है तो. हाँ तो अच्छा, इस 48 लिख दूं इसको, हाँ. और इसको भी 48 लिखता हूँ. ठीक है, और तो कुछ जरूरी नहीं लग रहा है मुझे. हाँ बताओ कैसे करेंगे. सर 180 degree minus AOC जो हमें पहले मिल गया था 96 degree. ओके, दैट इज A. ओके, AOC. हाँ ये तो 96 है, करेक्ट है. So 180 degree minus 96 degree divided by 2. Okay, so you mean to say because OA is equal to OC, देखो कैसे Yes. बोलना है. Because OA is equal to OC, angle OAC will be equal to angle OCA, angles opposite to equal sides. So if we take them as y, because we have already taken x, है ना, तो अब y लेंगे. So 96 plus 2y is equal to 180 degree. Figure it out, guys, fast. 180 minus 96. Fast. 84.
84. So y is equal to 84 divided by 2. 42 degree. 42. So angle OAC is 42. Please check the answer. 48, Sir, it's 66. correct. Sorry? Sir, it's correct. All are correct? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. Very good. और एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही है. 8th question. In the given figure, O is the center of the circle and length of arc AB is twice the length of arc BC. Length of arc AB is twice the length of arc BC. If angle AOB is 100 degrees, find. See, we have been given that AB is to BC is equal to 2 is to 1, है कि नहीं? AB का लेंथ BC से डबल है. AB का लेंथ BC से डबल है, डबल. और AOB कितना है? 100. तो BOC कितना होगा? तनीषा मोहनन. Tanisha Mohan. Yes, sir. Yes. Can you tell me BOC? Sir, BOC is half of angle AOB. Why? Sir, because they are of ratio 2:1. Because equal angles subtend equal angles at the center. Equal arcs subtend equal angles at the center. So if the ratio of the arcs is given, the ratio of the angles subtended will also be equal to the ratio of the arcs. So you should write a statement like the ratio of the angle measure of the angles will be equal to the ratio of the length of the arc. ठीक है, इसको ऐसे लिखो. Therefore, angle AOB is equal to angle BOC is equal to 2 is to 1. ठीक है, is 2 है, ये is 2 होगा. और इधर रीजन लिख लेना, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क्स is equal to ratio of angles subtended. Ratio of the length of arcs is equal to the ratio of the angles subtended. Angle OAC. Angle OAC. Now this is easy. Tanisha Mohanan. OAC. It is Yes, sir. very similar to the previous one. Sir, OAC is sum of all angles of a triangle is 180 degrees. So, Okay. angle COA plus angle OAC plus angle OCA is 180 degree. So Okay. there will be So in two you OAC. mean in triangle OAC, first you should Yes, sir. write OA is equal to OC. What is the reason? Radii Sir, of the radii of the same circle. Okay. Then you should write angle OAC is equal to angle OCA. Why? Sir, opposite angle of equal Angles opposite to equal sides. Okay. And therefore you should take angle OAC is equal to angle OCA is equal to x. ठीक है, दोनों x ले लिया. उसके बाद क्या? Sir, 180 degree minus 150 नहीं, degree. पहले तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी डालेंगे. एंगल OAC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x plus x plus AOC. How much is AOC? 150. Very good, because AOB is 100, BOC is 50. So 150 is equal to 180. So 2x is equal to 30. So x is equal to 15. Correct? Can you check the answer? Yes, sir. 50 and Correct, correct. 15. Good. Correct.
नाइस। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, और ये जो डी एक्सरसाइज है दैट इज मिसलेनियस। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों ने ए और बी तो पूरी कर ली है मेरे वीडियोस से। सी वाली और डी वाली तुम आज ट्राई कर सकते हो, बाकी के क्वेश्चन सी में खैर हमने फोर्थ फ्रॉम डी। Okay, suppose you are given a circle, describe a method by which you can find the center of this circle. हमने एक theorem पढ़ी थी that perpendicular bisectors of any two chords always intersect at the center. तो हम लोग उस सर्कल में कैसे लिखना है इसको, we will draw any two chords of that circle, of the given circle, and then we will draw perpendicular bisectors, construct करेंगे. We will construct perpendicular bisectors of the given circles. These perpendicular bisectors will always intersect at the center. So we can locate the center. Simple. बस इतना ही. ठीक है? So please try the remaining questions from circles. It's an interesting chapter. Questions are also good, interesting questions. और हमने कुछ questions जो मैंने वीडियो बनाए थे ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी थे, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थे, कुछ नहीं थे, कुछ एक्सरसाइज के थे. सो इट्स ऑल रैंडम क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड इन द वीडियो, सो यू हैव टू ट्राई देम. ठीक है, ग्रेट. नाउ लेट्स गो टू द चैप्टर simultaneous. If you have any doubts in simultaneous, that's a chapter we have done long ago. You can please ask me. So there are three methods we are focusing on this chapter, that is elimination by substitution, then elimination by equating coefficients, and cross multiplication. ठीक है, so after mastering all these three methods, cross multiplication is the easiest if you remember the formula, shortest. After mastering all these three methods and different types of questions from them, then there are word problems. Sir, can you do some question using elimination by substitution? Yeah, why not? From which exercise you want me to try? A, elimination by substitution. Acha, acha. Substitution is easy. I will show you one question from A. Tell me which one. Because it's points. You're afraid of points. Good. Dictate करो मेरे को question. 0.2x plus 0.1y Hmm. equals 25. Mm-hmm. 2 multiplied by x minus 2 minus 1.6y equals 160. 160. 160. 116. 116. ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा. So let me simplify the first equation. So what I'll do is I want to get rid of these decimals so that I have whole numbers to deal with. So for that I'll multiply the equation 1 by 10. Multiplying equation 1 by 10 throughout. So that is 10 bracket 0.2x plus 0.1y is equal to 10 times 25. 2x. एक मिनट, आराध्य बोलेगा.
बोल, मल्टीप्लाई करना 10 को दोनों के साथ। करेक्ट। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया। इक्वेशन नंबर 2 को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, सो इट विल बिकम 2x minus 4 minus 1.6y is equal to 116. So 2x minus 1.6y is equal to 116 plus 4. 4 को उधर छोड़ दो। So 2x minus 1.6y is equal to 120. अब मैं अगेन डेसिमल्स हटाऊंगा। So multiplying both sides by 10, so I will get 20x minus 16y is equal to इक्वेशन नंबर 4। लेकिन इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 थोड़ा सा बाद में लिखता हूँ। So what I can do is I can take out 4 common. If I take out 4 common, I will get 5x minus 4y is equal to 4 into 300, है ना। 4 कट जाएगा दोनों साइड से। I'll get 5x minus 4y is equal to 300. इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे सिर्फ इक्वेशन 3 और 4 पे फोकस करना है, बट द मेथड आई एम गोइंग टू यूज इज सब्स्टिट्यूशन ना, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y बिकॉज इट्स इजी टू डू सो। सो y इज इक्वल टू 250 माइनस 2x, ठीक है। ये मुझे कहां से मिला? इक्वेशन नंबर 3 से। I'll substitute The value of y in equation 1. y is equal to 250 minus 2x in equation 4. So I will get 5x minus 4y. In the place of y, I'm going to write 250 minus 2x, just 250 minus 2x is equal to 300. So 5x minus how much? 1000 plus 8x is equal to 300. So 5x plus 8x is 13x is equal to 300 plus 1000. So 13x is equal to 1300. X is equal to 1300 by 100. 13 which is equals to 100. X is equal to 13. Sir, how 13 by 1300? Oh, 13 by 1300. 1300 by 13. Sorry. 1300 by 13. So x is equal to 100. हाँ, तो substituting x is equal to 100 in y is equal to 250 minus 2x. इसमें ही करेंगे ना डायरेक्टली। So y is equal to 250 minus 2 into 100. That is y is equal to 250 minus 200, which is 50. X 100, y 50. पॉइंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड गेट रिड ऑफ द पॉइंट्स एंड सिंपली, हाँ पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। कुछ लोग पॉइंट्स में कंफर्टेबल है तो उसमें भी कर सकते हैं। इसमें तुम्हें यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द मेथड्स। फिर ये इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। सी ये ना बहुत बड़ा एक रिवीजन, एंड यू हैव वन एडवांटेज, दैट इज द वीडियो. You have to see that
एंड अंडरस्टैंड हर एक पार्ट का एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन देख लो कैसे किया है मैंने, हाउ आई हैव सॉल्व्ड फ्रॉम दिस पार्ट दैट इज रिड्यूसिबल वाला, हाउ आई हैव सॉल्व्ड फ्रॉम cross multiplication, elimination by equating coefficients, and then you have to focus on word problems because they are going to be tricky if you have not been practicing them. अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि दे आर लार्ज इन नंबर्स, अगर तुम देखोगे टोटल कितनी एक्सरसाइज है, 5 or 6. ये जी है, एफ है, एफ के बाद भी जी है, G is missing. हाँ, तो उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स है सारे. सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, अ ह्यूज चैप्टर. तो इसके लिए तुम्हें यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिविजन, मतलब तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा. तो आज का पूरा दिन तो सर्कल्स और इसमें ही जाना चाहिए. सर्कल्स फिर भी छोटा है और अभी एक पार्ट हमने किया उसका, तो देर इज नॉट मच लेफ्ट, और अभी हुआ है रिसेंटली, सो इट माइट बी फ्रेश इन योर मेमोरी. बट दिस चैप्टर हैज बीन डन लॉन्ग अगो, तो इसका रिविजन के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा. एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स इसको, ये अकेले चैप्टर को लगेगा पूरा कवर करने के लिए, एंड मे बी 1.5 hour फॉर सर्कल्स. देन यू विल बी डन विथ. या तुम्हें कुछ डाउट था ट्रिग्नोमेट्री में? कौन से चैप्टर में? रेशियोज. एक्सरसाइज 22. Seventh question. 22. ओके. क्या डाउट है? Given cos A equals pi 130. क्या करना है, क्या करेंगे? सर cos A निकालने के बाद sin और cos A निकालेंगे. cos A ट्रायंगल नहीं ड्रॉ करेंगे? ट्रायंगल करेंगे ड्रॉ? किया ड्रॉ तुमने? क्यों नहीं किया? विदाउट ट्रायंगल ड्रॉ किए कैसे होगा? मैंने कल भी बताया था, यू हैव टू ड्रॉ So ट्रायंगल. which question? क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट विल ड्रॉ द ट्रायंगल ना, ड्रॉ द ट्रायंगल. चलो करो, अभी सब लोग करो ये 7th क्वेश्चन. क्या डाउट है देखते हैं. बनाया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. एंगल ए को एक्यूट लेना, एक्यूट एंगल लेना. बी और सी कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी राइट एंगल होगा, डजेंट मैटर बी और सी में से, बट ए एक्यूट होना चाहिए. हर एक का ट्रायंगल अलग अलग होगा, सो वी कैन नॉट हैव अ कॉमन फिगर. ए को एक्यूट एंगल बनाया. अब cos A इज इक्वल टू 5/13. cos क्या होता है? हेलो, वैसे मत करो. cos A पहले सी कहाँ पे लिखा? Sir, can I try? या ट्राई इन योर बुक्स. किधर लिखा दिखाओ. that is adjacent upon hypotenuse. तो फिर 5 और 13 क्यों लिखा उधर? Sir, adjacent upon hypotenuse. It is ratio has been given to you. It is not the length of the side. क्या कर रहा है? एक मिनट, let me show you. See, you have to follow certain steps. तेरा मार्क्स क्यों जाता है पता है? Because you do not follow steps. यहाँ पे देख मैंने क्या लिखा है. क्या लिया है साइड को? 3x और 5x. क्या लिखा है? हाँ, तो x के टर्म्स में लेना है तुम्हें जब कैलकुलेट करोगे पाइथागोरस थ्योरम. x के टर्म्स में लो, और जो तीसरी साइड है वो ढूंढो x के टर्म्स में. apply Pythagoras theorem and find the
third side in terms of x. सर परपेंडिकुलर का मैं ये बता सकता हूँ, हाँ बताओ. 12x. 12x. Correct. So now you can find sin A, cot A, tan A. Can you find in the same figure sin A, cot A and tan A? And confirm the answer with me. आ गया, थर्ड साइड आ गई. ठीक, 12x आई. ओके, तो अब sin A, cot A और tan A ढूंढो. Sir, sin A is 12 by 13. ओके, करेक्ट. cot A, 5 by 12. and tan A, 12 by 5. correct. Sin A, let me just note it down here quickly. How much you said sin A was? 12 by 13. 12 by 13. Cot A, 5 by 12. And tan A. ठीक है, you got all the three ratios. Now put the ratios in this first question and then the second question individually and solve them and get the answer. Sir, first one is 395 upon 3744. 395 upon. 3744. Okay, and second one is? Sir, I'm doing. Check the answer. Behind. Checked. Correct. Okay. बाकी लोग करेंगे जब तक नहीं आ रहा है. Sir, can I tell the second answer? Yes. 181 upon 60. Very good.
Yes, can see. एक मिनट मैं देखता हूँ 2 मिनट. Okay guys, I'll stop the recording now. It's been 1 hour already and we have done the discussion which was required. Now you have to practice today and simultaneous, and watch the videos if necessary. Okay, there is no point of me explaining the same questions which I have done earlier all over again. You must revise first, and I can understand that you need time for revision now. मतलब अभी तक तुमको टाइम मिला नहीं है कि तुम उसको रिवाइज करो. So please revise today and review the questions, see the videos if possible, and if you require any help, I can go live again in the evening. ठीक है, कोई ऐसा critical question आता है तो let me know, I will help you out. ठीक है, so I'll stop the video now. I'll stop the recording.